So today we are going to talk about diencephalon. Diencephalon is the part of forebrain. Diencephalon, it is a part of forebrain. It is a part of forebrain. Actually, it is a third ventricle of brain. It is a third ventricle of brain. So the roof of diencephalon, it is a third ventricle of brain, and this is the roof. This is floor, and these are lateral wall. Roof of diencephalon is epithalamus. It is epithalamus. Floor of diencephalon is hypothalamus, and lateral walls of diencephalon are thalami. Thalamus is plural number, thalamus is singular number, and thalami is plural number. So diencephalon, it is a part of forebrain, and diencephalon present below the cerebrum and above the midbrain. So this is cerebrum. If this is cerebrum, this is cerebrum. So if this is cerebrum, cerebrum is the part of forebrain. This is median fissure. This is the cortex of cerebrum, cortex, and below the cortex medulla is present. So this is medulla of cerebrum, and here this is corpus callosum. This is corpus. If this is the corpus callosum, this is corpus callosum. Corpus callosum is the part of cerebrum which connect to cerebral hemisphere, and it is commissural fiber. Corpus callosum is commissural fiber, and below the corpus callosum fornix is present. So this is fornix. So this is fornix. So diencephalon, it is a part of forebrain which is present below the cerebrum and above the midbrain. So this is midbrain. So if this is midbrain, then this is cerebrum, and this is diencephalon. So diencephalon is present below the corpus callosum. This is corpus callosum. Corpus callosum, it is a part of cerebrum which connect to cerebral hemispheres. It is made up of white matter, that is axons, and this is diencephalon. So diencephalon is present below the corpus callosum and above the midbrain. So diencephalon is a part of forebrain which is present below the corpus callosum and above the midbrain. Diencephalon is a fluid filled part. It is a cavity, it is a hollow structure, and the cavity which is enclosed by diencephalon is third ventricle. So this is third ventricle, or it is diocele. Third ventricle or diocele, it is filled with cerebrospinal fluid. It is filled with cerebrospinal fluid. And roof of diencephalon is epithalamus. Floor of diencephalon is hypothalamus, and lateral walls of diencephalon is thalami. So we will discuss one by one all the parts of diencephalon. First of all, we will discuss epithalamus. Epithalamus. Roof of diencephalon. It is roof of
diencephalon. It is thin and it is non-nervous. Non-nervous means this epithalamus does not involve in the conduction of impulses. So epithalamus is thin and it is made up of non-nervous tissue. It is made up of non-nervous tissue. So this is diencephalon. It is its anterior region or its anterior part is fused with pia mater to form anterior choroid plexus. ये जो डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन मतलब ये एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है. डायनसेफेलॉन मतलब थर्ड वेंट्रिकल है ब्रेन का. तो इस थर्ड वेंट्रिकल का जो रूप है दैट इज़ एपिथैलेमस. इसका जो फ्लोर है दैट इज़ हाइपोथैलेमस एंड इसके जो लेटरल वॉल्स हैं दैट इज़ थैलामी. एपिथैलेमस इज़ द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन and it is very thin and it is made up of epithalamus is the roof of diencephalon. It is thin and it is made up of non-nervous tissue. एपिथैलेमस का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, दैट एंटीरियर पार्ट पाया मैटर के साथ फ्यूज़ होता है. सो एंटीरियर पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन फ्यूज विथ पाया मैटर टू फॉर्म एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस. क्या फॉर्म करता है? एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस फॉर्म करता है. एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस जो है वो एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस क्या सीक्रेट करता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट करता है एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस. एंड एपिथैलेमस का जो डॉर्सल पार्ट है, एपिथैलेमस का जो डॉर्सल पार्ट है, एपिथैलेमस के डॉर्सल पार्ट से हमें यहाँ पर एक ऐसी एक छोटी सी ग्लैंड नज़र आती है. दिस इज़ पिनियल. ये पिनियल ग्लैंड है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिनियल बॉडी. पिनियल ग्लैंड और पिनियल बॉडी, ये स्टॉक है उसका. दिस इज़ स्टॉक. तो ये दिस इज़ एंडोक्राइन. ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एपिथैलेमस से फॉर्म होती है. एपिथैलेमस का जो रूप है, एपिथैलेमस का जो डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल पार्ट ऑफ एपिथैलेमस गिव्स ऑफ पिनियल ग्लैंड और पिनियल बॉडी. इट इज़ अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रेट्स हार्मोन मेलेटोनिन. कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है ये? मेलेटोनिन. ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन इज़ द स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन. इट इज़ स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन. ये स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है एंड इट रेगुलेट्स सेक्सुअल बिहेवियर. इट रेगुलेट्स सेक्सुअल बिहेवियर. सेक्सुअल बिहेवियर भी ये रेगुलेट करता है हार्मोन. सो इन दिस वे epithalamus is the roof of diencephalon. Diencephalon is a part of forebrain which is present below the corpus callosum and above the midbrain. Actually diencephalon is a cavity. It is a cavity and the cavity is called third ventricle or diocele. Means diencephalon, if we consider diencephalon is a cavity or diencephalon is a hollow structure, then this cavity or this hollow structure is called third ventricle or diocele. It is called third ventricle or diocele. And roof of this diencephalon is epithalamus
lateral walls are thalami and floor of diencephalon is hypothalamus. And this cavity, that is third ventricle, it's communicate. This third ventricle is communicate with two lateral ventricles of cerebrum. These are two lateral ventricles of cerebrum which are present in the two cerebral hemispheres. So this is first lateral ventricle, this is second lateral ventricle. So these are two lateral ventricles, and these two lateral ventricles communicate with the third ventricle of diencephalon by means of foramen of Monro. So what is this? This is foramen. This is foramen of Monro. This is foramen of Monro. Foramen of Monro, it is a small aperture with the help of which lateral ventricles of cerebrum communicates with third ventricle of diencephalon. And epithalamus is a thin and highly vascular roof of diencephalon. Its anterior part is highly vascular, fused with pia mater to form anterior choroid plexus. We have discussed choroid plexus. So choroid plexus, it is a highly vascular part. It is a network of blood capillaries which secretes cerebrospinal fluid. So anterior choroid plexus is present at the roof of third ventricle. It is present at the roof of third ventricle, and it is formed by anterior part of epithalamus. It is formed by anterior part of epithalamus. So anterior part of epithalamus fuse with pia mater to form anterior choroid plexus, and from the dorsal part of epithalamus there is development of one gland, and that is pineal gland or pineal body. So this is the stalk of pineal gland. We can draw it. So this is pineal gland or pineal body, and this is stalk of pineal gland or pineal body. This is endocrine gland, and it secretes hormone. Name of that hormone is melatonin, and melatonin, it is a sleep inducing hormone. It also regulates sexual behavior. So we will discuss this pineal gland in the next part of this chapter, that is hormonal control in the endocrine glands. Next part of diencephalon is the thalamus. Thalamus is thick. It is thick part of diencephalon, and it consists of grey matter. Grey matter means cell bodies. Grey matter means cell bodies surrounded by ग्रे मैटर. सेल बॉडीज से बना हुआ जो पार्ट है दैट इज ग्रे मैटर. और न्यूक्लियाई मीन्स ग्रे मैटर सराउंडेड बाय फाइबर्स, वाइट मैटर. तो ये जो थैलामस है, लैटरल वॉल जो होती है डाइनसेफेलॉन की, दैट लैटरल वॉल्स आर कॉल्ड थैलामी. थैलामस इज़ द सिंगुलर नंबर एंड थैलामी प्लूरल नंबर. थैलामस में अगर हम देखेंगे तो हमें थैलामस में नज़र आता है ग्रे मैटर मीन्स सेल बॉडीज़. थैलामस ठीक है. थैलामस ये जो दो है थैलामस, ये एक, ये दूसरा. अगर मैं थैलामस को ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो दो ये जो थैलामस है, तो दोनों भी थैलामस के, ये दो थैलामस जो है थैलामी, इनको कनेक्ट करने वाला जो कमिशर है दैट इज़ हैबेन्यूलर कमिशर. दो लैटरल वॉल को कनेक्ट करने वाला जो कमिशर है दैट इज़ हैबेन्यूलर कमिशर. थैलामस का जो मेन फंक्शन है, थैलामस इज़ द गेट कीपर ऑफ सेरेब्रम. थैलामस इज़
गेट कीपर ऑफ सेरेब्रम। गेट कीपर बोलते हैं सेरेब्रम का थैलामस को, और थैलामस को रिले सेंटर भी बोलते हैं, रिले सेंटर। थैलामस के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम में दिस इज फ्रंटल लोब, parietal lobe, occipital lobe, and this is temporal lobe, lateral lobe और temporal lobe। ये 4 lobes है, frontal lobe, parietal lobe, then occipital lobe, and this is temporal lobe in this way। तो यहाँ पर दिस इज कार्पस कैलोसम, ये है कार्पस कैलोसम। थैलामस नीचे है ना, ये थैलामस है पूरा। तो थैलामस इज द गेट कीपर और इट इज रिले सेंटर। जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है, स्किन, ईयर, टंग, आइज, ये रिसेप्टर ऑर्गन्स है। दीज आर रिसेप्टर्स और सेंसरी ऑर्गन्स। ये रिसेप्टर ऑर्गन्स से आने वाली जितनी भी इम्पल्सेस है, जैसे स्किन से आने वाली इम्पल्स है, सबसे पहले कहाँ जाएगी? थैलामस में। फिर ईयर से आने वाली इम्पल्स है, सबसे पहले कहाँ जाएगी? थैलामस में। टंग से आने वाली इम्पल्स सबसे पहले कहाँ जाएंगी? थैलामस में। आइज से आने वाली इम्पल्स कहाँ जाएगी? थैलामस में। थैलामस जो है इस इम्पल्सेस को सेरेब्रम के एप्रोप्रिएट एरिया में रिले करेगा। स्किन से आने वाली इम्पल्स को कहाँ रिले करेगा? पैराइटल लोब में। टंग से जैसे ईयर से आने वाली इम्पल्स है, कहाँ इसे रिले करेगा? टेम्पोरल लोब में। टंग से आने वाली इम्पल्स को कहाँ रिले करेगा? टेम्पोरल लोब में। आइज से आने वाली इम्पल्स को कहाँ रिले करेगा? ऑक्सीपिटल लोब में। तो थैलामस जो है, जो भी इम्पल्स रिसेप्टर ऑर्गन से या फिर सेंसरी ऑर्गन से जितनी भी इम्पल्स आ रही सेरेब्रम की तरफ जाने वाली, वो सभी इम्पल्सेस सबसे पहले कहाँ आएगी? थैलामस में। और थैलामस उन इम्पल्सेस को क्या करेगा? रिले करेगा। कहाँ पर? एट द एप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ सेरेब्रम। सो देयरफॉर थैलामस इज कॉल्ड गेट कीपर और रिले सेंटर। इसके साथ साथ जो भी ब्रेन, सेरेब्रम के नीचे जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे मिड ब्रेन है, सेरेबेलम है, यहाँ पर है ना, ये इस तरह से ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स वेरोली, मिड ब्रेन है, पॉन्स वेरोली है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम, जितने भी पार्ट्स है ब्रेन के निचले पार्ट, ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलके तैयार होता है ब्रेन स्टेम। बाद में डिस्कस करेंगे। सेरेबेलम, तो ये सभी से आने वाली जो इम्पल्सेस है सेरेब्रम से, सेरेबेलम है, दिस इज अ सेरेबेलम। सेरेबेलम से आने वाली इम्पल्स, अगर सेरेबेलम से आने वाली इम्पल्स को सेरेब्रम में जाना है तो कहाँ से पास होंगी? वो थैलामस से। सेरेब्रम से जाने वाली जितनी भी इम्पल्सेस है सब कहाँ से पास होंगी? थैलामस से। तो इस तरह से जो थैलामस है, इट इज़ अ गेट कीपर ऑफ सेरेब्रम और इट इज़ अ रिले सेंटर ऑफ सेरेब्रम, एज वेल एज एक छोटा सा कंसेप्ट है RAS। RAS दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग
सिस्टम, ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है RAS, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ, ये नेटवर्क है दिस इज द नेटवर्क ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन्स का ये नेटवर्क है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम का जो बेस है, बेस ब्रेन स्टेम मतलब, ब्रेन स्टेम मतलब जो मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स वेरोली के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स मिलके बनता है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम, तो ये ब्रेन स्टेम का जो बेस है वहाँ से स्टार्ट होती है ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है थैलामस में भी होती है. कहाँ होती है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम? थैलामस में भी होती है, क्योंकि मिड ब्रेन के ऊपर क्या है, मिड ब्रेन के ऊपर डायनसेफेलॉन है, एंड डायनसेफेलॉन के लेटरल वॉल मतलब थैलामस. तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो थैलामस में भी है उसका कुछ पार्ट. तो ये जो थैलामस है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के द्वारा ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है. सो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द थैलामस कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स of brain. So in this way we have completed epithalamus and thalamus. Once again we will revise the points. Diencephalon, it is a part of forebrain which is present below the corpus callosum and above the midbrain. Diencephalon, actually it is a hollow part of brain, and the cavity which is present in the diencephalon is third ventricle or diocele. It is filled with cerebrospinal fluid, and the roof of diencephalon is epithalamus, which is very thin, highly vascular and non-nervous. Lateral walls of diencephalon are thick and thalamy, and floor of diencephalon is very important, and it is hypothalamus. Roof of diencephalon is epithalamus. Epithalamus is thin and it is made up of non-nervous tissue. Its anterior part fuse with pia mater to form anterior choroid plexus to secrete cerebrospinal fluid in the third ventricle. Then its dorsal part gives off a small endocrine gland, and that is a pineal gland, which secretes a hormone melatonin, which is a sleep inducing hormone, and it also regulates sexual behavior. Thalamy, lateral thick wall of diencephalon are thalamy. Thalamy contain gray matter, means cell bodies of neuron. Thalamy are called gatekeeper of cerebrum because all the sensory impulses except olfactory, pass relay through the thalamus to appropriate areas of cerebrum. And reticular activating system, which is present in the thalamus, connect different parts of brain, and the next part is hypothalamus. Hypothalamus is very important part of forebrain, or it is very important part of diencephalon, hypothalamus. Forebrain, the topic is forebrain, and the subtopic is diencephalon. And now we are starting with hypothalamus. So let us start this topic, hypothalamus. Hypothalamus again, this is cerebrum,
corpus callosum. This is corpus callosum. Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, and this is midbrain, pons varoli, and medulla. And here this is cerebellum. This is cerebellum. Cerebellum. Second largest part of brain is cerebellum. Thalamus, hypothalamus. Hypothalamus is the floor of diencephalon. It is floor of diencephalon. Hypothalamus is floor of. This is pineal gland. This is anterior choroid plexus. This is hypothalamus. Very important region of forebrain, hypothalamus. So hypothalamus is floor of diencephalon. It is very important part of forebrain and it regulates blood pressure, then heart rate, respiration, then homeostasis, water and electrolyte balance, of body. कितने सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस कम रेगुलेट कर रहा है हाइपोथैलेमस. कौन सा? ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, होम्योस्टैसिस, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, कंट्रोल इंटरनल एनवायरनमेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी. हाइपोथैलेमस इतने सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस रेगुलेट करता है. कौन से फंक्शंस रेगुलेट करता है? ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, होम्योस्टैसिस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी. हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस में इस तरह से ये मैंने एक हाइपोथैलेमस को एक थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ किया है. ये हाइपोथैलेमस है, देखिए, दिस इज हाइपोथैलेमस. ये जो हाइपोथैलेमस है ये है, दिस इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस में कुछ इस तरह से देखिए, ये सेल बॉडीज़ है. ये जो सेल बॉडीज़ है हाइपोथैलेमस में, ये जो सेल बॉडीज़ है इसे बोलेंगे हम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. So cell bodies in the hypothalamus are called hypothalamic nuclei, or it is a gray matter. ये है gray matter in the hypothalamus surrounded by white matter is hypothalamic nuclei. क्या है ये? hypothalamic nuclei.
ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है, दिस इनके देखिए एक्सॉन्स, ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, अलग अलग नाम है उनके। ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स न्यूरो हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। समझ में आया? हाइपोथैलेमस में जो ग्रे मैटर है, दैट ग्रे मैटर विच इज सराउंडेड बाय वाइट मैटर आर hypothalamic nuclei, and that hypothalamic nuclei are neurosecretory which secretes neurohormones oxytocin and vasopressin। ब्रेन कभी हार्मोन सिक्रेट करता है क्या? नहीं करता है ना। हार्मोन सिक्रेट करना किसका काम है? एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है। लेकिन हाइपोथैलेमस में ये जो ग्रे मैटर के मासेस है, दैट इज़ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ये दो न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। समझ में आया बेटा? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन बोला जाता है, बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोला जाता है ऑक्सीटोसिन को, एंड वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एडीएच। ये हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन जो हमारा नेफ्रॉन होता है किडनी में, उस नेफ्रॉन की जो वॉल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, नेफ्रॉन के वॉल को स्टिमुलेट करता है टू एब्जॉर्ब। नेफ्रॉन के वॉल, ये नेफ्रॉन है, देखिए इस नेफ्रॉन के वॉल को स्टिमुलेट करता है टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट। यहाँ नेफ्रॉन से क्या पास होता है? यूरिन, प्राइमरी यूरिन। नेफ्रॉन के वॉल में ये जो हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन नेफ्रॉन के वॉल में जाता है, नेफ्रॉन के वॉल को परमिएबल बनाता है, किस लिए? टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो इसीलिए इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वाटर कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन को वैसोप्रेसिन बोला जाता है क्योंकि ये हार्मोन ब्लड वेसल को प्रेस करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है? कंप्रेस करता है, टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। दो काम करता है। तो ये जो दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तब पिट्यूटरी पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे ना इनको डिटेल में। अभी तो इतना ही याद रखना है कि द हाइपोथैलेमस हैज़ अ मासेस ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एंड दैट सिक्रेट्स न्यूरो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन्स तैयार होते हैं, सिक्रेट होते हैं, तैयार होते हैं हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। लेकिन ये जो हार्मोन्स है यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ इनका प्रोडक्शन होता है, यहाँ से ये हार्मोन यहाँ आते हैं। ये जो ग्लैंड है, इट इज़ अ पिट्यूटरी, जो मैं रेड कलर से ड्रॉ करूँगी, ये पिट्यूटरी है, ये पिट्यूटरी है ग्लैंड। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन पिट्यूटरी का ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये लोब है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इस लोब में पिट्यूसाइड्स सेल्स होते हैं, पिट्यूसाइड सेल्स स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, उस सेल्स में ये हार्मोन्स स्टोर्ड होते हैं एंड ये पिट्यूसाइड्स से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हार्मोन प्रोड्यूस, ये जो हार्मोन है इनका प्रोडक्शन होगा हाइपोथैलेमस में। कौन प्रोड्यूस करेंगे हार्मोन्स को? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ग्रे मैटर मतलब सेल बॉडीज़, उनके ही जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स से ये हार्मोन्स कहाँ आएंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस में। और न्यूरो हाइपोफाइसिस में जो पिट्यूसाइड सेल्स है, उस सेल्स में ये हार्मोन्स स्टोर्ड होंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होंगे। समझ में आया? हाइपोथैलेमस इज़ अ लिंक बिटवीन एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस का ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज़ अ लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम
and endocrine system and endocrine system. हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस मतलब ये लिंक है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम की। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को अटैच है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कनेक्ट है। मतलब हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का यहाँ क्या हो गया, जंक्शन हो गया। समझ में आया? तो ये जो है हाइपोथैलेमस, इट इज़ अ लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इतना ही नहीं, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये कुछ न्यूरो हार्मोन्स सिक्रेट करता है, जो न्यूरो हार्मोन्स पिट्यूटरी का फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड विच कंट्रोल functioning of all the endocrine glands of our body, but hypothalamus control pituitary gland. So real master is hypothalamus. पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी जितने भी हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन सिक्रीशन कंट्रोल करती है, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा? हाइपोथैलेमस। इसलिए रियल मास्टर क्या है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे फैक्टर्स सिक्रेट करता है, जिसे रेगुलेटरी फैक्टर्स बोलेंगे, इनहिबिटरी फैक्टर्स बोलेंगे, रिलीजिंग फैक्टर्स बोलेंगे। जैसे अभी पिट्यूटरी के इस लोब से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होना है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। जब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करेगा, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इस एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा, तभी एंटीरियर लोब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करेंगे। समझ में आया ना? हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी कनेक्टेड है। तो हाइपोथैलेमस हाईली वेस्कुलर रीजन है। हाइपोथैलेमस कैसा है? हाईली वेस्कुलर पार्ट है ये फोरब्रेन का। मिटा दूँ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका कि नहीं हुआ? हाइपोथैलेमस ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हाईली वेस्क्यूलर है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स है हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे हम? हाईली वेस्कुलर पार्ट ऑफ फोरब्रेन, हाईली वेस्कुलर पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस से क्या बनता है? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। देखिए हाइपोथैलेमस में ये डायग्राम का कुछ काम नहीं है, अभी इसको मिटा देती हूँ मैं। फ़िलहाल तो इसका अभी कुछ काम नहीं, अभी हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस हाईली वेस्कुलर है। हाइपोथैलेमस में जो सिस्टम है वो है हाइपोथैलेमस में जो वेन है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल वेन, पोर्टल वेन। हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल का मतलब होता है, हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी। हाइपोफाइसिस का मतलब क्या होता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। समझ में आया? तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी कनेक्टेड है। देखिए फिर से
देखिए यहाँ ये जो हाइपोथैलेमस है, इस ये देखिए हाइपोथैलेमस इस तरह से ये एक्सटेंड हुआ नीचे। अब ये जो लोअर डाउनवर्ड एक्सटेंशन है हाइपोथैलेमस का, दिस डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस इज इनफंडिबुलम। इसे बोला जाता है दिस इज इनफंडिबुलम और हाइपोफाइसियल स्टॉक और पिट्यूटरी स्टॉक। हाइपोफाइसियल स्टॉक और पिट्यूटरी स्टॉक दिस, और इसके एंड में ये एक जो लोब है, दिस इज पार्स नर्वोसा। इसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। इस तरह से देखिए ये हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड एक्सटेंशन किससे बना है? ये एक्सॉन से बना है, नर्वस टिश्यू से बना है। तो ये जो है दिस इज़ इनफंडिबुलम और पिट्यूटरी स्टॉक और हाइपोफाइसियल स्टॉक। दूसरा जो इसका लोब है पिट्यूटरी का, दिस इज़ एंटीरियर लोब। ये हो गया एंटीरियर लोब। इस तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनी। अब इसमें ब्लड वेसल्स का ऐसा नेटवर्क होता है हाइपोथैलेमस में, जिसे बोलते हैं जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। यहाँ से यहाँ कैपिलरी का नेटवर्क है, फिर ये कैपिलरीज यूनाइट होती है, कैपिलरीज यूनाइट होके यहाँ वेन्यूल्स बने, वेन्यूल्स फिर यहाँ कैपिलरी में डिवाइड हुई। ये है साइनोसाइड। क्या है ये? साइनोसॉइड। फिर ये यूनाइट होके इससे फिर से वेन बनी। तो ये पोर्टल सिस्टम है। क्या है ये? पोर्टल सिस्टम। और ये जो है ये दीज आर ब्रांचेस ऑफ वेन्यूल्स, या फिर इसे वेन्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? वेन्यूल्स। देखिए इसमें दो कैपिलरी के सेट्स है, दो कैपिलरी के नेटवर्क है, तो ये पोर्टल सिस्टम हो गई। तो इसे ये जो वेन है, ये पोर्टल सिस्टम बनाती है, इसे बोलेंगे हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। ये फीडबैक मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीडबैक मैकेनिज्म से पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। फीडबैक मैकेनिज्म से पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? ये तो इस चैप्टर का हिस्सा नहीं, ये तो अगले चैप्टर में पढ़ना है हमें। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जैसे हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स सीक्रेट होंगे, वो हार्मोन्स इस ब्लड कैपिलरीज के, यहाँ पर भी, इधर भी है ना ऐसा ही। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो हार्मोन्स पहले इस ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ होंगे ना। जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो कहाँ से होता है? कैपिलरीज से ही होता है। फिर कैपिलरीज से यहाँ से देखिए यहाँ आएंगे, यहाँ हाइपोथैलेमस से ब्लड में गए, यहाँ ब्लड से पिट्यूटरी में आएंगे। समझ में आए? ये एक सेट क्या कर रहा है? एक सेट हाइपोथैलेमस के हार्मोन ले रहा, और ये सेट क्या कर रहा? हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी को दे रहा। तो इस तरह से जो भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है, न्यूरो हार्मोन्स, वो पिट्यूटरी में आते हैं, पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी का सिक्रीशन, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं। स्टिमुलेट करेंगे तो पिट्यूटरी से हार्मोन सीक्रेट होंगे, इनहिबिट करेंगे तो पिट्यूटरी से हार्मोन सीक्रेशन स्टॉप होगा। इस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म का एक एग्जांपल देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ एक थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये थायराइड ग्लैंड है। पिट्यूटरी से जब TSH हार्मोन सीक्रेट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड से थायरोक्सिन सीक्रेट होता है। लेकिन जब थायरोक्सिन की लेवल बढ़ जाती है, थायरोक्सिन की लेवल बढ़ गई, तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ गया? हाइपोथैलेमस में गया, इनहिबिट किया। क्योंकि TSHRF, जब हाइपोथैलेमस से TSHRF निकलेगा
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, तभी पिट्यूटरी से TSH निकलेगा। जब पिट्यूटरी से TSH निकलेगा तभी थायराइड से क्या निकलेगा, थायरॉक्सिन। देखिए हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ने थायरॉक्सिन को स्टिमुलेट किया, सीधा सीधा है ये, है ना। ये केमिकल कंट्रोल है ना, केमिकल कंट्रोल, केमिकली कंट्रोल कर रहा। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल किया, TSH-RF सीक्रेट किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ने पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट किया। किसके लिए स्टिमुलेट किया, फॉर द सिक्रेशन ऑफ TSH, क्योंकि ये रिलीजिंग फैक्टर किसके लिए है, TSH के लिए। तो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब ने क्या सीक्रेट किया, TSH, थायराइड रिलीजिंग, थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर। फिर ये TSH गया थायराइड में और थायराइड को स्टिमुलेट किया, तो थायराइड से क्या सीक्रेट हुआ, थायरॉक्सिन हार्मोन। लेकिन इस तरह से केमिकल, देखिए केमिकल कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल किसका, हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी पर और पिट्यूटरी का थायराइड पर। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया फॉर द सिक्रीशन ऑफ TSH और पिट्यूटरी ने थायराइड को स्टिमुलेट किया फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। लेकिन जब थायरॉक्सिन के लेवल ब्लड में बढ़ जाती है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन जाके हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता टू स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ TSH-RF। जब TSH-RF सिक्रेशन स्टॉप होगा तभी TSH का सिक्रेशन स्टॉप होगा और तभी थायरॉक्सिन का सिक्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म। इसे क्या बोलेंगे हम, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जो TSH-RF थायरॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही थायरॉक्सिन जाके TSH-RF को क्या कर रहा, इनहिबिट कर रहा। दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म। इसे क्या बोलेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म। इस फीडबैक मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन एंड पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। देखिए हाइपोथैलेमस फिजिकली एंड केमिकली कनेक्टेड है किसको, पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस केमिकली कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, कैसे कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को। अभी तो मैंने एग्जांपल बताया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, TSH रिलीजिंग फैक्टर, फिजिकली तो कनेक्टेड है ना, अटैच है ना फिजिकली। तो ये समझ में आया, इतना आगे चलेंगे। हाइपोथैलेमस बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। स्लीप कंट्रोल करता है, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, है ना। कौन से फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, एंगर, इमोशंस, हाँ, सेटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन बोलते उसे। इसके बाद सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, एंगर, इमोशंस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ये सभी रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। ये सब अपने इमोशंस है ना। सेटिस्फैक्शन, खाना खाने के बाद अपना पेट भरता है, सेटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन बोलते हैं हम इसे। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का सिक्रीशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सिक्रीशन कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस पर एक इतना इम्पोर्टेंट सेंटर है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। हाइपोथैलेमस पर जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, हाइपोथैलेमस पर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है।
बॉडी टेम्परेचर। वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस है वो भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। कैसे? हाइपोथैलेमस ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेट करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मीन्स ADH। एंड ADH का काम कहाँ है? ADH किडनी पर एक्ट होता है। किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उस नेफ्रॉन के, किडनी में जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन के वॉल को ये हार्मोन नेफ्रॉन के वॉल में मिक्स होता है एंड नेफ्रॉन के वॉल की परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है। फॉर व्हाट? फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट। तो वाटर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड प्रेशर, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन दूसरा भी काम करता है, इसे वैसोप्रेसिन बोला जाता है। वैसोप्रेसिन, क्योंकि ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है। वैसोप्रेसिन ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है। क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कंप्रेस, मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम करता है। ब्लड वेसल का डायमीटर कम किया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इस तरह से ये काम करता है। हाइपोथैलेमस का इन फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमस एक पोर्शन होता है ऑप्टिक कायस्मा। ऑप्टिक कायस्मा ये इट इज़ प्रेजेंट, ये इन फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमस। यहाँ पे जो दो ऑप्टिक नर्व्स होती है, ऐसे दो ऑप्टिक नर्व्स का क्रॉसिंग होता है, एक लेफ्ट साइड से आने वाली और एक राइट साइड से आने वाली, इस तरह से। ये कौन सा साइड है? लेफ्ट। ये कौन सा साइड है? राइट। ये देखो राइट साइड की जो नर्व है ये लेफ्ट आई को इनर्वेट होगी। ये लेफ्ट साइड की जो नर्व है ये राइट आई को इनर्वेट होगी। ये जो क्रॉसिंग है, ये वाला, ये जो क्रॉसिंग है, इट इज़ ऑप्टिक कायस्मा। तो ये क्रॉसिंग कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस के सामने। समझ में आया? दूसरा, एक हमारे जो मैमल्स है, मैमल्स में जो हाइपोथैलेमस है, वहाँ हाइपोथैलेमस में दो ऐसी राउंडेड बॉडीज़ होती है हाइपोथैलेमस में, और वो जो राउंडेड बॉडीज़ है, दैट राउंडेड बॉडीज़ मैमिलरी बॉडीज़, क्या बोला जाता है उसे? मैमिलरी बॉडीज़। हाइपोथैलेमस में ऐसी दो राउंडेड बॉडीज़ है एंड दैट राउंडेड बॉडीज़ आर मैमिलरी बॉडीज़। मैमिलरी बॉडीज़ है। ये जो मैमिलरी बॉडीज़ है सिर्फ मैमल्स के ब्रेन में है, बाकी किसी के ब्रेन में नहीं है। लिम्बिक सिस्टम इमोशन ब्रेन बोलते उसको, है ना? लिम्बिक सिस्टम। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे ब्रेन में जिसे लिम्बिक सिस्टम बोला जाता है। और लिम्बिक सिस्टम जो है वो क्या क्या कंट्रोल करता है? देखिए, मोटिवेशनल ड्राइव्स, इमोशनल रिएक्शंस एंड मेमोरी। लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल लिम्बिक सिस्टम ये तीन फंक्शंस रेगुलेट करती है: मेमोरी, इमोशनल रिएक्शंस, मोटिवेशनल ड्राइव्स। लिम्बिक सिस्टम फॉर्म होती है
अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलामस, पहले एपिथैलामस आएगा, एपिथैलामस, थैलामस एंड हाइपोथैलामस से। ये एमिगडाला एंड एमिगडाला का मतलब होता है अलमोंड शेप। अलमोंड शेप, अलमोंड शेप स्ट्रक्चर है टेम्पोरल लोब में। कहाँ है? टेम्पोरल लोब में है सेरेब्रम के, जिसे एमिगडाला बोलते। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस का मतलब होता है सी हॉर्स, ऐसा होता है ना, सी हॉर्स। ये हिप्पोकैम्पस वही सेरेब्रम में, सेरेब्रम के टेम्पोरल लोब में ये ऐसे शेप का पार्ट है सी हॉर्स जैसा, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? हिप्पोकैम्पस। तो अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस ये हो गए टेम्पोरल लोब के पार्ट्स। समझ में आए ना? जहाँ पर लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ना, लैटरल वेंट्रिकल्स के पास होते हैं ये दोनों भी पार्ट। अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, एपिथैलामस का पार्ट, हाइपोथैलामस का पार्ट एंड थैलामस का पार्ट। थोड़ा थोड़ा सम पार्ट ऑफ एपिथैलामस, सम पार्ट ऑफ थैलामस एंड सम पार्ट ऑफ हाइपोथैलामस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये पूरा मिला के क्या फॉर्म करते हैं? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। और ये जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम इसे इमोशनल ब्रेन भी बोला जाता है। लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करती है? इमोशंस कंट्रोल करती है। इमोशनल ड्राइव्स, इमोशनल रिएक्शंस, मोटिवेशनल ड्राइव्स, इमोशनल रिएक्शंस एंड मेमोरी।